Hello dear students, myself Vishal Chaudhary and today I welcome you in a very beautiful video named Indigo, and this is the life of Mahatma Gandhi and it is written by Louis Fisher. So actually student, this chapter portrays about the Mahatma Gandhi and their वर्क जो उन्होंने किए हिंदुस्तान को पुवर्टी स्ट्राइकन हिंदुस्तान को वी शुड से उन आज़ादी दिलाने के लिए, एंड साथ ही जो एक बहुत ही बड़ा इंडिगो मूवमेंट हुआ था, मींस जो किसान फार्मर्स नील की खेती किया करते थे उन लोगों को हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए थे और बहुत ज़्यादा उनको ह्यूमिलेट किया जाता था. सो रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स उन्होंने कैसे अचीव किया अपने डिज़ायर गोल को एंड कैसे हम ओवरकम हुए इन जो सारी स्ट्राइकन सिचुएशंस थी इनसे. सो वी विल नो ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर एंड बिफोर दैट वी विल नो समथिंग important related to the Mahatma Gandhi ji. So let's begin our journey of this beautiful chapter without wasting any more time, and I would must like to make you a request ke do subscribe the channel and watch complete video to understand this chapter in a better way. Here you can also look a student. First of all we will talk something important and that is called the learning objectives. So here to know that forgiveness and peaceful means can be more effective than revenge and violence. तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वो ये है कि जो फॉरगिवनेस होती है एंड पीसफुल मीन्स होते हैं एंड साथ ही ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं रेवेंज से एंड वायलेंस से, कि अगर हम अपने जीवन में किसी को क्षमा करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके अपनाते हैं तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं सामने वाले से बदला लेने से या हिंसा करने से. एंड इवन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि वाई एंड हाउ रूल्स एंड लॉज आर मेड एंड एनफोर्स्ड, कि जो रूल्स होते हैं उनको क्यों बनाया जाता है, क्यों एनफोर्स किया जाता है, एंड वाई डिफरेंट रूल्स आर नीडेड इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड हाउ टू टेक पार्ट इन मेकिंग एंड चेंजिंग रूल्स. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट टू थिंक अबाउट द लाइफ्स ऑफ पीपल लिविंग इन अदर प्लेसेस एंड टाइम्स एंड पीपल विद डिफरेंट वैल्यूज एंड कस्टम्स, to realize the nature and consequences of racism, teasing, bullying and aggressive behavior and how to respond to them and ask for help. ये सारी चीज़ें we will know in this chapter. So this is very beautiful and I hope that you will be till last in this video. So let's move further. Dear student, first let's discuss something important about Mahatma Gandhi ji. So here we can see कि Mahatma Gandhi ji was born in state of Gujarat in 1869. कि जो महात्मा गांधी जी हैं उनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था 1869 में. अपार्ट ऑफ दैट वी कैन से डियर स्टूडेंट हियर the age of 13 Mohandas was married to Kasturba. Kasturba was the name of their wife and the marriage had been arranged for him by his family. So you can say कि this was the arranged marriage and they had 4 sons और इस शादी से उनको 4 बेटे हुए. We can say कि when he was 18, कि when Mahatma Gandhi was in his 18 years age, तो he came to London and to train as a barrister. Instead of that, he tried behaving like an Englishman and took up ballroom dancing. We know that we took dislike to his landlady's boiled cabbage. And यहाँ पर बात आ जाती है कि when he was in his young 18 age, so he went to London and there, as it is the English customs also, he took up ballroom dancing. means जो डांस पार्टीज़ वगैरह होती हैं, पार्टीज़ में जाना, बॉल्स में जाना एक फ़ैशन सा था एंड ये भी समवेयर एंगेज रहे इन चीज़ों में. और हम ये भी जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपनी जो लैंडलेडी थी उनकी बॉयल्ड कैबेज को भी डिसलाइक करते थे व्हेन ही यूज्ड टू ईट दैट. A part of this that in these days he got a stage fright when speaking in court, and as he was preparing for the barrister, so somewhere he was having a terror in his soul, speaking in front of a stage or on a stage or on the public prosecutor or in front of the judge also we can say. But next year we can say that after all these things he returned to India in 1891 and then accepted as a job at an Indian law firm in South Africa. And this is the young age photo of Mr. Mohandas Karamchand Gandhi ji.
Next important thing is that he experienced of racism in South Africa. When he came to the South Africa, तो वहाँ पर उन्होंने फील किया एक रेसिज्म को. एक्चुअली डियर स्टूडेंट, रेसिज्म क्या होता है कि रेसिज्म इज़ अ प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ पीपल्स कलर स्किन. जो लोगों की स्किन का कलर होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन दैट कि ये काला है, ये गोरा है. दिस इज़ कॉल्ड रेसिज्म. तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने ये चीज़ फेस आउट की एंड proved to be turning point in his life, and this was the turning point in his life where the journey, we can say, can begin. He was refused to admission to hostel, beaten up when he refused to give up his seat to a white man on a stage coach. This was the first incident which was happened with Mr. Gandhi, and thrown off a train when he refused to move to a third class compartment after had paid for the, just a minute, after had paid for the first class ticket. So even a part of all these things, उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था. Next important thing which is related to this chapter or the life journey of M.K. Gandhi, we can say here कि when he was about to return to India, he heard that a law was going to be passed to prevent Indian people from voting. कि एक लॉ पास होने जा रहा है और इस लॉ के अंतर्गत जो इंडियन पीपल्स हैं, दे विल लूज देयर राइट टू वोट. वो अपने वोट के अधिकार को खो देंगे. सो ही डिसाइडेड टू ड्रॉ अटेंशन टू दिस इनजस्टिस एंड बिकेम एन एक्टिविस्ट. तो उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और इस इनजस्टिस के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करेंगे, और साथ ही एक एक्टिविस्ट वो अब बन गए थे. हाउएवर, अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी कहा करते थे कि देयर आर मैनी कॉजेज दैट आई एम प्रिपेयर टू डाई फॉर, कि ऐसे बहुत सारी वजहें हो सकती है जिनकी वजह से आई विल प्रिपेयर फॉर डाई, कि मैं मरने के लिए तैयार हो सकता हूँ. बट नो कॉजेज दैट आई एम प्रिपेयर टू किल फॉर, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती जिसके लिए मैं सामने वाले को मार दूँ, उसको किल कर दूँ. मीन्स समवेयर इट शोज द नॉन violence that is inherited, we can say here, in M.K. Gandhi. And he developed a new non-violent way to make things right by greeting lots of people to disobey unfair laws and to be uncooperative with rulers who were treating them badly. कि उन्होंने लोगों को अवेयर किया कि जो लोग आपको ह्यूमिलेट करते हैं, जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, यू जस्ट स्टैंड अगेंस्ट दोज पीपल एंड रेज योर वॉइस. उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, उनको समझाया कि अपनी वॉइस को रेज करिए, एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स उन्होंने चलवाए विच वर वेरी हेल्पफुल फॉर द पीपल्स on that time. Here next thing is that, dear student, कि apart of all these things, over the next 7 years Gandhi led a non-violent campaign of resistance to laws which were unfair to colored people. During this time, thousands of Indians, including Gandhi, were flogged or jailed, and many were shot for striking or burning their registration cards. अब देखिए कितना ज़्यादा एक वायलेंस हुआ यहाँ पर कि अगले 7 सालों तक गांधी जी ने एक नॉन वायलेंट कैंपेन चलाया, एंड इसके तहत क्या हुआ, इसमें विरोध किया गया उन कानूनों का जो कानून बने थे रेसिज्म की बेसिस पर कलर्ड लोगों के लिए. एंड इस टाइम हज़ारों इंडियंस, साथ ही गांधी जी के साथ भी, उनको जेल में ठूस दिया गया, एंड मैनी वर शॉट, और बहुत सारे लोगों को गोली मार दी गई थी. स्ट्राइकिंग और बर्निंग, के जो उनके रजिस्ट्रेशन कार्ड थे वो उनको जला रहे थे, बर्न कर रहे थे. रिगार्डिंग दैट उनको अंग्रेज़ों ने गोली मार दी थी. इसके अलावा नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट देख सकते हैं कि इवेंचुअली द गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू सीक अ कॉम्प्रोमाइज़ विद गांधी. अब जब अंग्रेज़ों की जो फोर्स थी, अंग्रेज अधिकारी ऑफिशियल्स थे, व्हेन ही ऑब्जर्व के वी कैन नॉट स्टॉप दिस मूवमेंट और द कैंपेन बाय एनफोर्समेंट, तो उन्होंने गांधी जी से कॉम्प्रोमाइज़ किया. एंड व्हेन ही लेफ्ट साउथ अफ्रीका, जब उन्होंने साउथ अफ्रीका को छोड़ा तो कंडीशंस फॉर इंडियन पीपल हैड ग्रेटली इम्प्रूव्ड, वी कैन से. तो उसके बाद जो हिंदुस्तानी लोग थे उनकी स्थितियों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी आया था. इन दिस चैप्टर वी विल ऑल्सो नो
these things. अगर हम बात करते हैं some more important points की, actually dear student, here there are many dates, place, events, incidents, so you have to be very careful and remember all these things because all these things will help you to write your answer while you were appearing your examinations. These things will act as a value points. So here in 1915, this is the time of 1915 when he back in India. तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि in which year Gandhi ji was brought back to India or they came to India, so we can say in 1915 Gandhi ji set up an ashram here. Gandhi ji set up an ashram and this is a self-sufficient community where he ate a simple diet. जहाँ पर ये simple diet लेते थे and live like the poorest villagers, और एक poor villager की भांति ही रहते थे. गांधी जी used to say कि if India is the country of poor farmers and the people of this country and my peoples are poor, so I am also not having the right to live a lavish life. So this was the, we can say कि thoughts of M.K. Gandhi, Mr. M.K. Gandhi, जो and which proves themselves a milestone in the successful life journey of Mr. M.K. Gandhi. Apart of all these things, here we can also discuss that he spun his own yarn and in his ashram he spun his own yarn. अपना खुद का वो चरखा चलाते थे, made his own cloth, खुद के कपड़े बनाते थे and he encouraged others to do the same, और वो दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देते थे instead of buying imported British material, जिससे कि जो देश का पैसा है वो देश में रहे, स्वरोजगार को बढ़ावा मिले. इसके साथ ही हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एट दिस टाइम इंडियन विलेजर्स वर पुअरली पेड एंड मैनी वर डाइंग ऑफ फेमाइन. अब एक्चुअली ये कंडीशन बड़ी अजीब थी. अब हिंदुस्तानियों को बड़ा कम पे किया जाता था जो सामान उनसे ख़रीदा जाता था, और बहुत सारे हिंदुस्तानी हमारे भाई बहन वो लोग मर रहे थे. इन 1918 गांधी began a campaign to get them to stand up and themselves against the British who were ruling India. कि उन्होंने लोगों को उजागर किया, उनको समझाया कि we must stand in against the Britishers, we must oppose the Britishers and we have to come forward to raise our voice. Next is that it was at this time that Gandhi became known as महात्मा, और ये वही वक्त था जब गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली थी, and which means a great soul. The British became worried about keeping control. अब एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी बात थी और ब्रिटिशर्स को भी अब चिंता होने लगी थी कि हाउ टू कंट्रोल द इंडियन पॉपुलेशन. तो सोल्जर्स वर ऑर्डर टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गैदरिंग टुगेदर मीटिंग्स. अब सोल्जर्स को भी ये दिया गया आदेश कि आप एनफोर्समेंट करिए कि जो लोग एक साथ मिलकर के मीटिंग्स करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, आप उनको फोर्सफुली रोकिए, ये मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए. इंस्टेड ऑफ दैट, nevertheless in 1999 10,000 unarmed people attended a protest meeting in Amritsar, and इनके साथ आपने सुना होगा बहुत ही ज़्यादा फेमस एक मीटिंग हुई थी और एक नरसंहार हुआ था. ब्रूचुअल ऑनर किलिंग तो नहीं कहना चाहिए, ब्रूचुअल किलिंग हुई थी जिसमें 400 लोगों को मार दिया गया था, और ये जलियांवाला बाग नरसंहार ही था. मीनवाइल, खैर समय के साथ द ब्रिटिश रूलर कंटिन्यू टू कलेक्ट हैवी टैक्सेस. अब ब्रिटिश रूलर जो थे वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए थे और वो हैवी टैक्सेस को कलेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से जो इंडियंस थे वो अभी भी पुबर्टी में थे और बहुत प्रॉब्लम में थे. तो क्या होता है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स इन 1930 गांधी लेड 248 माइल मार्च टू द सी. तो गांधी जी जो थे उन्होंने 248 माइल की यात्रा एक शुरू की अगेंस्ट अ टैक्स ऑन सॉल्ट, जिसको हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं डियर स्टूडेंट. and join them in making salt of their own. Over 60,000 people were arrested, और इस दौरान लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. नेक्स्ट है यहाँ पे कि हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड टू नेगोशिएट विद गांधी, और यहाँ पर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को
फोर्स हो जाती है, दबाव बन जाता है कि गांधी से अब उनको समझौता करना पड़ता है, एंड दे agreed to release political prisoner if he stopped his campaign on non cooperation। तो उन्होंने शर्त रखी कि अगर गांधी अपना नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है और अपने कैंपेन को रोक देते हैं तो वो प्रिजनर्स को स्टॉप कर देंगे। दिस वाज द कंडीशन विच was came from the side of Britishers। And here in 1933, after the 3 years of Dandi March, Gandhi went on a fast for 21 days। 21 दिनों के व्रत को उन्होंने धारण किया to draw attention to the treatment of the very poorest people of India, who he called the children of God। कि जो हिंदुस्तान के गरीब बच्चे थे उनकी कंडीशन को अपग्रेड करने के लिए कि 21 दिन का उन्होंने फास्ट रखा था, और उन बच्चों को जनरली ये कहा करते थे द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। सो ऐसे थे गांधी जी, डियर स्टूडेंट। अनदर है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब एक्चुअली क्या होता है कि गांधी एंड हिज फॉलोअर्स मेड इट क्लियर, उन्होंने एक साफ कर दिया था दैट दे वुड नॉट सपोर्ट ब्रिटेन अनलेस इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस, कि जब तक हिंदुस्तान को आज़ादी प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी दे विल नॉट सपोर्ट इन दैट वर्ल्ड वॉर। तो वो उस वर्ल्ड वॉर में वो और उनकी आर्मी सपोर्ट नहीं करेगी। इन 1942 गांधी को इसी के लिए गिरफ्तार किया गया एंड उनको जेल हुई 2 सालों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट थिंग दैट कि इन 1947 गांधी जी ने एक कैंपेन चलाया। गांधी का जो कैंपेन था वीकेंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कमज़ोर किया ऑन द कंट्री, बट विद इंडिपेंडेंस लूमिंग किलिंग एंड रायोट्स raged between Hindus and Muslim who hope to take control of the new Indian government। लेकिन जो हिंसा भड़कती जा रही थी और साथ ही जो क्लैशेस हो रहे थे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, जो लोगों में नफ़रतों की आग भड़क रही थी, उसकी वजह से एक नई गवर्नमेंट की ज़रूरत थी। नेक्स्ट यहाँ पर बात आ जाती है, सो इट वॉज डिसाइडेड टू डिवाइड इंडिया इंटू 2 सेपरेट कंट्रीज़, और हिंदुस्तान को 2 बराबर भागों में बांटने का निश्चय किया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान जिसको हम जानते हैं आज। गांधी वॉज स्ट्रांगली अपोज टू द आइडिया बट वॉज फोर्स टू एग्री बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ सिविल वॉर। गांधी जी हमेशा से इस विचार के खिलाफ थे, लेकिन सिविल वॉर ना हो उसके रिगार्डिंग उन्होंने इसको चलते कोई ज़्यादा कदम नहीं उठाए थे। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इज दैट आगे गांधी जी कहते भी हैं द वायलेंस कंटिन्यूड, गांधीज अपील फॉर काम वर इग्नोर्ड, सो ही बिगेन अनदर फास्ट। तो गांधी जी की जो इग्नोर थी कि आप हिंसा ना करें, जब उसको इग्नोर कर दिया गया, सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग वो फास्ट पर चले गए, उन्होंने व्रत रखा। एंड ओनली व्हेन द हिंदू सिख एंड मुस्लिम लीडर्स प्रॉमिस टू रिनाउंस वायलेंस डिड ही एग्री टू टेक अ सिप ऑफ ऑरेंज जूस। और जब जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के नेता थे उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि they will not take any step related to the violence, तो then only he drank a sip of orange juice, तभी उन्होंने ऑरेंज जूस का एक सिप लिया था और अपने फास्ट को ओपन किया था। सो ये कैरेक्टर था गांधी जी का, जिनको आज हम फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। अब जो रिलेटेड टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।